So, dear friends, today we are going to talk about the lesson number 5, Indigo, written by Louis Fisher. Like we are all aware about Mahatma Gandhi, and this is the story, or I can say it's an interview taken by Louis Fisher. So, the story is based on interview taken by Louis Fisher of Mahatma Gandhi. So, here is the person who has taken an interview in 1942 at Sevagram Ashram. He actually visited Sevagram to just take an interview over there. So, for writing biography, he visited Sevagram Ashram, that is in 1942. So, please remember the things like he visited Sevagram Ashram in 1942. So, whatever the things were happening, and it was nearly, I would say, 5 years remaining for the India's freedom, because in 1947 India got freedom and the interview was taken on 1942. So that was a prime time for our India, that we were about to get the freedom. So the story is based on getting safeguard sharecropper from the atrocities of landlords. Now, main thing of this chapter, we can say that it is to give a safeguard to protect their rights from the atrocities of landlords. Now, what does it, the word stands for, atrocities of landlords? We can say a kind of exploitation of these people being done by these landowners, या फिर हम कह सकते कि जो landlords थे, तो उन्होंने जो उनके ऊपर जो अत्याचार किए, या फिर they were suppressed, they were objected, and they were moreover financially they were exploited. So that was the main reason, and this event actually is talking, and we are talking about Champaran. So here is our main point, Champaran. Now, what is the whole story about? So Rajkumar Shukla followed Gandhiji. Now it's a main part. I have just pointed out certain events from this chapter. So Rajkumar Shukla, he was from Champaran. He presented over there. He represented Champaran and he followed Gandhiji many a times, just to have a look at the situation of Champaran, what is happening over there. Indigo is, I would mention over here, indigo जिसका title है. It's a plant which are useful for making dye. तो अब उसका जो प्लांटेशन था उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, तो ये इश्यू सॉल्व करने के लिए राजकुमार शुक्ला उसको फॉलो करते हैं. मतलब जहां जहां गांधी जी की मीटिंग होती है, या फिर आई वुड से कुछ ओकेजन्स होते हैं जहां सभा होती थी, तो राजकुमार शुक्ला फॉलोड. और गांधी जी वॉज इम्प्रेस्ड अ लॉट, कि मतलब उसका कमिटमेंट इतना था कि राजकुमार शुक्ला, मतलब उनका जो एक काइंड ऑफ एम्बिशन था कि नहीं, गांधी जी को ये चीज, हमें सिचुएशन जो है, जो इस चीज को हमें दिखाना है, और ही शुड फोकस अपॉन दिस केस. सो फ्रॉम कलकत्ता दे वेंट टू चंपारण. और गांधी जी ने ये कहा कि उनका कुछ फंक्शन या कुछ सभा थी जो कलकत्ता में थी, तो ही सेड लाइक इन 1917 में, तो उन्होंने कहा आई एम जस्ट कमिंग ओवर देयर इन कलकत्ता, सो यू कैन गेट मी ओवर देयर, ऐसा गांधी जी ने कहा. तो राजकुमार शुक्ला उनको ले जाते चंपारण, और चंपारण जाते ही मेट राजेंद्र प्रसाद. वहां राजेंद्र प्रसाद जी से मिले, जेबी कृपलानी एंड अदर लॉयर्स, और उन लोगों को मिले जो कि मिलने का मेन रीजन ये था, टू गेट टू नो द थिंग्स. वो जानना चाहते थे व्हाट वाज हैपनिंग देयर. और ये चंपारण की ये जो सिचुएशन है, शेयर क्रॉपर्स की जो बारे में बात की जा रही थी, वो क्या है एक्चुअली. अब क्या है कि वो फील्ड में जाना है, तो लेट अस टेक अ ग्लांस ऑफ द मैटर. तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम कुछ चीज को देखना चाहते हैं, तो वी जस्ट टेक अ ग्लांस ऑफ दैट, हम एक नजर से देखते हैं. बट व्हेन वी एक्चुअली वांट टू गेट इनटू दैट पर्टिकुलर मैटर, वी नीड टू हैव द थरो नॉलेज, एंड द पर्टिकुलर थिंग मस्ट बी एक्सपीरियंस्ड. सो वहां वो जेबी कृपलानी और लॉयर्स को भी मिले, नाउ टू नो द सिचुएशन. तो वो सिचुएशन देखना चाहते थे. अब प्रॉब्लम क्या था? मेन प्रॉब्लम आई हैव मार्क्ड आउट दैट 50% ऑफ peasants land holding was to be reserved. अब उन्होंने ये कहा कि 15%, एक्चुअली ये इसका लॉ बन चुका था शेयर क्रॉपर्स के लिए, तो वो लॉफुली काम नहीं हो रहा था. मतलब हम देखा जाए तो लेवल वाइज एक पेडागोजी बन रहा था. मतलब पीसेंट्स बोले तो मजदूर,
उसके ऊपर शेयर क्रॉपर्स या फिर उसको कोबिफिसेंट्स के साथ थे, एंड देन लैंडलॉर्ड्स जो जमीन के मालिक हुआ करते थे, एंड उसके ऊपर आते थे ब्रिटिशर्स। अब एक एक्सप्लोइटेशन की एक चेन बन चुकी थी, मतलब ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट कर रहे थे और दैट इज हाउ दैट चेन गोज ऑन। और वैसे ही मतलब लास्ट लेवल पे तो मतलब द थिंग्स वर वेरी वर्स्ट, है ना। तो वहां बस 15% ऑफ लैंड होल्डिंग था। सो इट वॉज अ ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम फॉर दिस पीसेंट्स, जो मजदूर थे, शेयर क्रॉपर्स थे, उनके लिए ये प्रॉब्लम था। तो गांधी जी फॉट फॉर द राइट्स, और गांधी जी उसके राइट्स के लिए लड़े थे। ही स्टडीड द थिंग्स के भाई उनके जो लाइक यू नो काइंड ऑफ लॉज बन चुके थे, जो कायदे थे, उसको स्टडी किया, और उसका जो जैसे हम कहते हैं ना कंपनी का एमओयू होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो ऐसी एक सिचुएशन को देखने के लिए क्या उनके राइट्स रिजर्व थे हिस्टोरिकली, वो सब देखना पड़ता है। तो वो केस लड़ने वाले थे, मतलब काइंड ऑफ एक हम कह सकते एक उन्होंने मूवमेंट चलाई थी। और उसके बाद गांधी जी वो समन्ड, और उनको ये कहा गया था कि यू आर लाइक यू नो सपोज टू लीव चंपारण एट दिस मोमेंट। तो उनको चंपारण छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन गांधी जी नहीं माने। देन उनको एक सुनने में बात आई कि देयर वाज अ पीसेंट जिसके ऊपर ऐसे बहुत अत्याचार हो रहे थे, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। सो गांधी जी वो देखने गए, तो वहां ही एक ब्रिटिश का कोई सुपरिटेंडेंट आता है, एंड ही हैंडेड ओवर अ नोटिस, और उनको बोला गया कि आपको समन किया गया, आपको आना है। When actually he was presented and he said that I haven't broken any laws, जो भी कायदे कानून है मैंने नहीं तोड़े हैं, या मैंने डिसओबे जरूर किया है कि आपने नोटिस भेजी है, आई हैव डिसओबेड दैट। सो वो मैं मानता हूं, लेकिन दिस इज अवर राइट्स, ये हमारे हक का है, और हम ये जो हक है वो लेके रहेंगे। सो दैट इज वाई इवन दिस पीपल सरेंडर्ड देमसेल्फ। तो गांधी जी के सामने ब्रिटिशर्स को झुकना पड़ा, एंड दे वर रेडी कि चलो भाई आप रह सकते हो, आप ये केस सॉल्व करो, और वो भी लीगली लॉफुली काम करना है। सो बाद में गांधी जी के ऊपर जो केस दर्ज किया गया था वो भी निकाल लिया गया, दैट फाइल वाज यू नो इट वाज बीइंग रिटन एंड ऑल दैट। सो गांधी जी इवन कंटिन्यूड फाइटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर राइट्स फॉर द शेयर क्रॉपर्स। देन व्हाट हैपेंड, एट लास्ट 25% ऑफ अमाउंट वाज नेगोशिएटेड। उसके बाद जो लैंडलॉर्ड्स और पीसेंट्स, जिसको शेयर क्रॉपर्स, उन सबका एक मीटिंग होता है, और जो लॉफुली कर रहा था वो था 15% तो नहीं चाहिए। देन इट वाज डन फॉर 25% ऑफ अमाउंट, और गांधी जी ने उसको उस एग्रीमेंट को उसको मान लिया गया कि हाँ भाई इट्स ओके, चलो हम मान लेते हैं, क्योंकि वो ये जो पुराना जो एग्रीमेंट था उससे ये पीसेंट्स शेयर क्रॉपर्स को बचाना चाहते थे। दैट इज वाई 25% ऑफ अमाउंट वाज नेगोशिएटेड। तो गांधी जी ने बोला कि इट्स ओके, वो ठीक है। उसके बाद जो चीजें हुई, मतलब एवरीथिंग वाज ओके नाउ, क्योंकि शेयर क्रॉपर्स है, पीसेंट्स है, लैंडलॉर्ड्स है, वो सब ओके हो गए थे, मतलब दे इवन एक्सेप्टेड सर्टेन थिंग्स के भाई नाउ इट्स ओके, ऑल ओके। सो दिस इज द चैप्टर अबाउट दिस पर्टिकुलर चंपारण मूवमेंट। तो मतलब अगर हम ब्रीफ में कह सके, even I have sent you that PDF copy for that also. Even you can read the whole original text too. But the gist of the lesson is that Gandhiji fought for Champaran and this to safeguard these peasants or sharecroppers, है ना। और moreover क्या हुआ, established schools, गांधी जी ने चंपारण के कुछ विलेजेस में जहां जहां मेन पॉइंट्स है वहां पे 6 से 7 स्कूल वहां उन्होंने खोली, जहां पे महादेव देसाई, नरहरि परीख और उनका जो सन था जिसका नाम देवदास था, तो दे रेंडर्ड देयर सर्विसेज, वहां उन्होंने सेवा का काम किया, और वहां पे स्कूल के बारे में और सब यू नो दे टॉट एवरीथिंग ओवर देयर टू प्रोवाइड द बेस्ट एजुकेशन देयर। एंड कस्तूरबा, और बेसिकली उनके जो साथ गांधी जी के जो वाइफ थे कस्तूरबा, शी टॉट देम हेल्थ एंड हाइजीन एंड एवरीथिंग। सो एंड कुछ डॉक्टर्स जो थे, हाँ मैंने यहाँ एक मेंशन करना है, इवन डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स थे जो वॉलेंटरली गांधी जी के साथ इस मूवमेंट में जुड़े, और उन्होंने वहां मेडिकल फैसिलिटीज भी अवेलेबल कराई, और उनके साथ मतलब एक अपलिफ्टमेंट हो गया है उस एरिया का। और एंड दैट इज ड्यू टू द आई वुड से ट्रिमेंडियस एफर्ट्स दैट महात्मा गांधी जी मेड, है ना।
So this is the whole chapter about the interview taken by लुईस फिशर. और लास्ट में गांधी जी ने जो ये चीज करी और उसके साथ जो एक्चुअली ब्रिटिशर्स के सामने गांधी जी जीत जाते हैं और जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वो हट जाता है. वहां पे एक पीसफुल मेकर, मतलब शांति प्रिय एक ब्रिटिशर था, and his name was Andrew, and he said like he wanted to help Gandhi ji in these all these matters. तो गांधी जी ने उसकी हेल्प नहीं मांगी because गांधी जी believed that my country people should learn self reliance, जिसको हम आत्मनिर्भर कहते हैं, है ना. तो वो सेल्फ रिलायंस सिखा रहे थे. और उन्होंने ये भी कहा कि लाइक द थिंग्स दिस सिचुएशन हैज टॉट मी वन थिंग, और मैं ये मानता हूं कि जब तक मैं इस देश में हूं, माय पीपल शुड get what their right is, and we should not take help from the Britishers and all that. तो मतलब मैं जब तक यहाँ इस कंट्री में हूँ, महात्मा गांधी ने कहा, तब तक मेरे देशवासी जो हैं, मेरे कंट्री पीपल हैं, they should not even ask for the others help and all that. So this is how these people can get self reliance too, है ना. Fine. So this is the interview, or you can say it's a story about this Champaran and how Gandhiji fought for the rights of the sharecroppers, and it is written by Louis Fisher. And even though after having this video, if you have any doubt, we can have the live sessions also, and again we can talk about that particular things also. So thank you people. Stay home, stay safe. Thank you very much.